ایکسپریس نیوز ہیڈ لائنز کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے یو فون نے۔ پشاور کا قصہ خانی بازار پھر لرز اٹھا، ہوٹل پر خودکش حملہ، 8 افراد جاں بحق، 42 زخمی، متعدد دکانیں تباہ ہو گئیں۔ کراچی میں بھی دہشت گردی، گکھا پھاٹک کے قریب ٹریک کو دھماکے سے اڑا دیا گیا، لاہور جانے والی ٹرین کی متعدد بوگیاں الٹ گئی، زخمیوں کی چیخو پکار۔ مذاکراتی افق پر چھائے بے یقینی کے بادل چھٹ گئے، حکومتی کمیٹی کا صبح انکار، شام کو اقرار۔ رحیم اللہ یوسف زئی نے فون گھما دیا، کہتے ہیں بھام دور ہو گیا، ملاقات کر لیں، آج ملنا ممکن نہیں، مولانا یوسف شاہ کا جواب۔ سمیع الحق، پروفیسر ابراہیم اور مولانا عبدالعزیز ہی ہمارے حتمی نمائندے ہیں، جس نے مذاکرات کرنے ہیں انہی سے کرے، ترجمان طالبان شاہد اللہ شاہد نے واضح کر دیا۔ حکومتی کمیٹی وعدہ کر کے ملاقات کے لیے نہ پہنچی تو سمیع الحق کا پارا چڑھ گیا، سرکاری کمیٹی پر بے اختیار اور امریکی دباؤ کے الزامات جڑ دیے۔ رحیم اللہ یوسف زئی کہتے ہیں کوئی پریشر نہیں، ہم با اختیار ہیں۔ عمران خان کے انکار پر وزیراعظم نواز شریف بھی حیرت میں گم، بولے کمیٹی والے تو اپنے ہی لوگ ہیں، طالبان کو اپنا بھی کوئی نمائندہ شامل کرنا چاہیے۔ ایک سیر تو دوسرا سوا سیر، تحریک استحقاق پیش کرنے پر متحدہ اور پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے ایوان سر پر اٹھا لیا، ایک دوسرے پر لفظی بمباری، بات بڑھی تو شہلا رضا نے ایم کیو ایم کے رکن کو ڈانٹ پلا دی۔ غیر ملکی لڑکیوں پر قانون کی عنایت، اسلام آباد ایئرپورٹ سے بغیر امیگریشن کے ایسے نکالا جیسے مکھن سے بال، سابق اسسٹنٹ ڈائریکٹر امیگریشن گروہ کا سگنا نکلا، ایک ملزم دھر لیا گیا۔ بے راہ روی معاشرے کو دیمک کی طرح چاٹنے لگی، کراچی میں انسان نما درندے نے ایک اور ننھی کلی کی زندگی اندھیر کر دی، بچی اسپتال منتقل، ملزم گرفتار۔ پاک بھارت دوستی پر شیو سینا کے گنڈوں کا ایک اور وار، ممبئی میں پاکستانی صوفی بینڈ میکال حسن کی تقریب پر دھاوا بول دیا۔ چوٹی کے سابق اوپنر اب چوٹی کی ٹیم منتخب کریں گے، عامر سہیل ڈائریکٹر گیم ڈیولپمنٹ مقرر، چیف سلیکٹر کی اضافی ذمہ داریاں بھی مل گئیں۔ اور سندھ فیسٹیول میں گدھوں کو بھی مہارت دکھانے کا موقع مل گیا، ریس میں 50 کھلاڑیوں کی شرکت، میوزک بجا تو ہوا سے باتیں کرنے لگے۔ پانی دو، یہ لیں سر، یہ ایسے نہیں اٹھے گا، جھٹکا دے۔ یہ لیں سر، اسے اور بڑی جھٹکے کی ضرورت ہے۔ سر کسی اصلی ڈاکٹر سے مشورہ لے لیتے ہیں۔ گڈ آئیڈیا، کال ملاؤ۔ میرے فون سے کال مہنگی، میرے فون کی بیٹری لو اور ریٹ بہت ہائی ہیں۔ نہیں سر، میرے یو فون سے کال صرف 90 پیسے فی منٹ ہے۔ 90 پیسے پورا منٹ؟ اتنا سستا کال ریٹ؟ لگانا جھٹکا سستے ریٹ کا، یعنی اب رات 12 سے اگلی شام 5 بجے تک یو فون سپر سستا پیکج سے کال صرف 90 پیسے میں پورا منٹ، وہ بھی تمام نیٹ ورکس پر بغیر ڈیلی چارجز کے۔ پیکج کے لیے ابھی *5678# ملائیں۔ یو فون سے بچ گئے۔
तुम नहीं, मेरे पैसे। क्या हुआ डॉक्टर साहब? कुछ नहीं, चश्मा साफ कर रहा हूँ। अस्सलामुअलैकुम, एक्सप्रेस न्यूज में खुश आमदेद। मैं हूं ज़ीशान मलिक और मैं हूं महरीन सप्तान। बुलेटिन में हमारे साथ है सलमान हैदर। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। बर्तन धोने की रेसिपी याद है ना? 1 चम्मच विम जेल खोलो, 1 दिन के सारे बर्तन धो लो। और महीने भर के बर्तनों के लिए महीने भर के बर्तनों के लिए इतना क्या सोच रही हो? 30 चम्मच वाला विम जेल मंथली पैक सिर्फ 75 रुपए में। 30 चम्मच वाला विम जेल मंथली पैक सिर्फ 75 रुपए में। आगाज में एक अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। पेशावर के इलाके की साखानी में कुचा रिसालदार के होटल में खुदकुश धमाका हुआ, जिसके नतीजे में अब तक की इत्तलात के मुताबिक 8 अफराद जाँ बहक हुए हैं, 42 जख्मी हुए हैं और इस वक्त अफरा तफरी का आलम है वहां पर। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे जहांगीर शहजाद से। जहांगीर शहजाद, इस धमाके की नौयत और शिद्दत के बारे में अपडेट कीजिए और वहां पर इस वक्त सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, ये किसानी बाजार है, इसके बिल्कुल अक्ब में जो है वो कुचा रिसालदार है, उसमें जो है इमाम बारगाह अलमदार है, उसके करीब जो है ये पार्क होटल है। और इसमें तकरीबन 8 बजे जो है, जिस वक्त ये अहले तशरीफ जहाँ पर जितने भी यहाँ पे ठहरते हैं, इनका ताल्लुक कुरम और पाड़ा चिनार से है, वो इमाम बारगाह में भी आते हैं और जब भी पेशावर आए यहाँ पर आते हैं। और इस वक्त वो खाना खाने में मसरूफ थे, अचानक ये उस होटल के अंदर ये धमाका हुआ है और धमाके में जो है पूरा जो है होटल की इमारत जो है एक मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है। और इसमें जो है अब तक जो है 42 अफराद जो हैं वो जख्मी हो चुके हैं, जबकि 8 अफराद जो है हलाक हो चुके हैं। इन जख्मियों में जो है तकरीबन 35 जो है मर्द हैं, 5 बच्चे और 2 जो है ख्वातीन शामिल हैं। इन जख्मियों को लेडी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने यहाँ पर जो मौके से खुदकुश हमलावर के आजाद जिनमें टांगे और सर शामिल हैं वो जो है कब्जे में ले लिए गए। बम डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक हमलावर की उम्र तकरीबन 18 से 19 साल थी और उसने जो है खुदकश जैकेट में तकरीबन 4 किलो शहजाद हमारे साथ लाइन पर रहेगा। सूबाई वज़ीर शौकत यूसुफ ज़ई इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं, हम चाहते हैं जो छोटे मोटे वाक़यात करके वो चाहते हैं कि इस तरह कहीं ना कहीं अब ये इन चीज़ों से वाज़ेह हो जाएगा। अमन मुज़ाकरात एक दफ़ा शुरू हो जाए, पता चल जाएगा कि कौन लोग हैं जो साजिश में शरीक हैं। जी, इस वक्त सूबाई वज़ीर शौकत ज़ई मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे भी हम मजीद अपडेट्स लेते हैं। जहांगीर शहजाद, बताइएगा कि आप कुछ बता रहे थे उस वक्त जो खुदकुश बमबार है उसके हवाले से क्या मालूम हो सका है? जी, बम डिस्पोजल स्क्वाड ने खुदकुश हमलावर की 2 टांगे और सर जो है वो कब्जे में ले लिया है। इब्तिदाई तफ्तीश के मुताबिक जो है खुदकुश हमलावर की उम्र तकरीबन 18 से 19 साल थी और उससे खुदकश जैकेट में तकरीबन 4 किलो से 4 और 5 किलो के दरमियान जो है बारूद था और 2 किलो जो है बार बैरिंग जो है वो उसमें पड़े हुए थे। और धमाके के बाद जो है वो पूरा होटल जो है तबाह हो चुका है। वहाँ पर जो है इस वक्त चूँकि यहाँ पर बिजली वगैरह थी वो भी काट दी गई है। होटल में फौरी तौर पर आग लगी थी जिस आग पर काबू पा लिया गया है। अब इमदादी कार्रवाइयाँ मुकम्मल कर ली गई है, लेकिन बम डिस्पोजल स्क्वाड भी वहाँ पर मौजूद है और होटल की जो है मुकम्मल चेकिंग कर रहे हैं और जख्मी को लीडिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक जो है ये चूँकि एक रोज कबल भी यहाँ पर करीब भी तकरीबन 1 फरलांग के फासले पर पिक्चर हाउस सिनेमा है, उसके अंदर 2 धमाके किए गए थे। और आज सुबह जो है इसी जो है रोड पर जो है मोहम्मद अली जोर रोड के साथ कुछ रिसालदार है, वहाँ पर जो है अहले तशी का सूबाई जो है रहनुमा उसको भी फारन करके हलाक कर दिया गया था। और उसके बाद पुलिस ने यह सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी गई थी और इनको जो है अपने करीबी होटल तक महदूद कर दिया गया था। इसी वजह से वो जो है आज ज्यादातर लोग बाहर नहीं निकले और करीबी जो है इनका पाक होटल था उसी के अंदर ये खाना खाने में मसरूफ थे कि अचानक जो है खुदकुश हमलावर जो होटल के अंदर दाखिल हुआ और उसने जो है खुद को बम से उसके धमाके से उड़ा दिया। जी अच्छा, ये बताइएगा कि ये इलाका काफ़ी अब हसास है क्योंकि यहाँ पर मुतअद्दिद बार धमाके हो चुके हुए हैं। उसके बाद आपने कहा कि सिक्योरिटी भी यहाँ पर टाइट थी, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि खुदकुश बमबार जो है ये मजीद आगे जाना चाहता था लेकिन ये महदूद हो गया और इस होटल तक इसे रुकना पड़ा? नहीं, चूँकि यहाँ पर जो 3-4 दिन से जो टारगेट किलिंग भी हो रही है और जो है धमाके भी हो रहे हैं जिस तरह पिक्चर हाउस सिनेमा भी हुआ, तो ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी नजर आती है। क्योंकि आज जो है जिसका सूबाई सदर अहले तशी को जो है वो सूबाई रहनुमा को मारा गया और ये भी जो है क्योंकि यहाँ पर जो है अहले तशी बताया कुरम एजेंसी और पारा चिनार के जो रिहायशी होते हैं वो अक्सर यहाँ पर आके रात भी गुजारते हैं। उनके लिए बाकायदा यहाँ पर मुसाफर खाना भी है इमाम बारगाह के करीब और यहाँ पर वो अगर फैमिली के साथ आए तो वो भी रहते हैं। तो बाकायदा इस वक्त रोजाना 8 बजे जो है वो 7:30 बजे होटल के अंदर आ जाते हैं, वो खाना खाते हैं और 8 बजे जो है खाना खाने में मसरूफ थे। 8 बजे के
8:03 या 3 मिनट में खुदकश हमलावर जो है वो अंदर आया, उसने खुद को धमाके से उड़ा दिया और खुदकश हमलावर का जो टारगेट था वही जो है यही होटल था और कोई दूसरी जगह नहीं थी, इसलिए जो है वो ज्यादा जहांगीर, आपने कहा यहाँ पे सिक्योरिटी टाइट कर दी गई थी। 2 दिन पहले ही इसी इलाके में सिनेमा को भी निशाना बनाया गया, तो पहले की सिक्योरिटी और अब की सिक्योरिटी में क्या फर्क था, किस कदर बढ़ाई गई थी, कितनी बेहतर थी? जी होटल ये जो ज्यादा सिक्योरिटी थी यहाँ पर, चूंकि ये सोखानी बाजार है, यहाँ पर होटल भी हैं, सराय हैं, उनकी चेकिंग शुरू कर दी थी कि यहाँ पर कोई गैर मुतलका शख्स जो है वो ना ठहरे, और जो भी यहाँ पर 2 दिन से ठहरा बकायदा उसका शिनाख्ती कार्ड वगैरह देखा जा रहा है। लेकिन ऐसा मालूम होता है कि जिस पहले भी पेशावर का जो है ये आउटसाइड का जो एरिया है, सबरब का एरिया है या कोहाट रोड है, बिल्कुल ये रास्ता जो है कोहाटी बाजार और कोहाटी से सबरब का इलाका शुरू होता है, तो मे भी कि ये लड़का जो खुदकश हमलावर है इसको यहाँ तक कोई मोटरसाइकिल पर या किसी तरह यहाँ पे ड्रॉप करके गया है और इसके बाद ये अंदर दाखिल हुआ है और उसने जो है अपने मजबूत मकासद में जो है कामयाब हुआ है। मैं थोड़ा सा शहजाद हमारे साथ लाइन पर रहेगा, आपसे भी लेंगे। हम चलेंगे अस्पताल जहां फैजान हुसैन हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। फैजान हुसैन, अस्पताल इंतजामिया ने क्या तस्दीक की है, कितनी लाशों को यहाँ लाया गया और कितने जख्मी मुंतकिल किए गए हैं? जी, अस्पताल इंतजामिया ने अब तक 8 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक की है, जबकि 42 अफराद के जख्मी होने की जो है वो तस्दीक कर दी है। अस्पताल में अभी सुबह ही वजीर सेहत शौकत यूसुफजई ने भी विजिट किया। उनका कहना है कि अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी है, तमाम डॉक्टरों को बुला लिया गया है, पैरामेडिकल स्टाफ को बुला लिया गया है, जख्मियों को बेहतर तरीके से तिब्बी इमदाद दी जाएगी। यहाँ पे 42 जख्मी आए हैं और 8 अफराद की लाशें यहाँ पे लाई गई हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताते चलूँ, तहरीक तालिबान के मरकजी तर्जुमान शाहिदुल्लाह शाहिद ने धमाके से लाइल्मी का इजहार किया है। उनका कहना है कि पेशावर धमाके के बारे में हमें नहीं पता है कि ये किसने किया है। जी अच्छा फैजान, इस वक्त आप यहाँ अस्पताल में मौजूद हैं और 42 के करीब अफराद जख्मी जो कि यहाँ पर लाए गए हैं, क्या आप देख रहे हैं कि अस्पताल में इस कदर इंतजामात मौजूद है? जी, हमने वैसे पहले भी देखा है कि पेशावर में जैसे भी धमाका होता है, जब भी धमाका हुआ है, तमाम जख्मियों को और जाँ बहक अफराद को करीबी लेडी रीडिंग हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाता है। इंतजामात के हवाले से ये कहा जा सकता है कि इंतजामात कोई खातिर ख्वाह नहीं है, क्योंकि जख्मी काफ़ी ज़्यादा हैं, 42 जख्मी हैं, फौरी तौर पे उन्हें नहीं ट्रीट किया जा सकता। लेकिन इस बार इतनी ज़्यादा जख्मियों को तकलीफ नहीं हुई। पहले धमाके में, किस्साखानी धमाके में हमने देखा था कि उसमें जख्मियों को काफ़ी तकलीफ हुई, फर्श पे पड़े हुए थे जख्मी, लेकिन आज कुछ इंतजामात उनके पहले से बेहतर हैं। 42 जख्मी यहाँ पे आए हैं और 8 अफराद की लाशें अस्पताल में मुंतकिल की गई हैं। सुबह वजीर सेहत ने भी अस्पताल का विजिट किया है। जी फैजान हुसैन, अगर कोई जख्मी इस हालत में हो कि उसने बात की हो मीडिया से या आपसे अगर बात की हो, तो क्या बताया है इस धमाके के बारे में और शख्स को किसी ने देखा हो जिसने ये हमला किया? जी, जख्मियों से अभी तक किसी की बात नहीं हो सकी, क्योंकि जख्मी जैसे ही आए उन्हें इमरजेंसी में शिफ्ट कर दिया और उन्हें इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी जा रही है। जिनको इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी गई उसके बाद उन्हें वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया। अभी तक जख्मियों से बात नहीं की गई। अगर कोशिश करेंगे कि जख्मियों से हमारी बात हो और उनसे सूरत हाल के बारे में हम आगाह कर सकें कि आया ये धमाका किस तरीके से हुआ, क्योंकि जो जख्मी हुए हैं उन्होंने ये तरीका, ये मंजर जो है उन्होंने अच्छे तरीके से देखा होगा, उनको कुछ ना कुछ याद होगा कि किस तरीके से खुदकश हमलावर वहाँ पे आया, होटल के बाहर जो ये धमाका हुआ है, किस तरीके से उसने ये ब्लास्ट किया, उस वक्त वो लोग वहाँ पे क्या कर रहे थे, ये तभी बेहतर तरीके से पता चलेगा जब हम किसी जख्मी से बात करें। थोड़ी देर में हम कोशिश करेंगे कि जो जख्मी वार्ड में मुंतकिल हो गए हुसैन, आप कोशिश कीजिएगा किसी से आपकी बात हो सके, उनसे मजीद मालूमात भी हासिल हो सके। जहांगीर शहजाद की तरफ चलते हैं जो कि किस्साखानी बाजार में मौजूद हैं, वहां से हमें अपडेट करें। जहांगीर शहजाद, आपसे भी यही पूछना चाहेंगे कि जगह पर जो लोग मौजूद थे उनमें से किसी से आपकी बात हो सकी जो एनी शाहिद हो, जो बता सके कि वहां पर इस वक्त क्या हुआ था, कौन था ये बमबार? नहीं, बिल्कुल, चूंकि जिस होटल के अंदर जो धमाका हुआ था उसमें जितने भी अफराद थे वो तमाम जिनमें से 8 हलाक हो चुके हैं, कोई सीरियस जख्मी हैं, लेकिन उसके करीब जो है मुसाफर खाना जो था LHC का, उसमें जो है कुछ अफराद जख्मी हुए हैं। तो उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि चूंकि टाइम खाने का था, हमारे कुछ साथी जो है वो खाने के लिए चले गए, हम यहाँ पर बैठे हुए थे, तो अचानक जो है खौफनाक धमाका हुआ। जब धमाका हुआ तो बाहर निकले तो हर तरफ ये धुआं था और जख्मी वो पड़े हुए थे। किसी ने खुदकश हमलावर को नहीं देखा, ना तो अंदर जाते हुए ना बाहर आते हुए, किसी ने देखा नहीं। ताहम जो है वो जख्मी जितने भी हैं वो चूंकि इस काबिल नहीं है कि उनसे जो मीडिया
میڈیا سے بات کرتے ہیں, لیکن جو عینی شاہد بتا رہے ہیں کہ یہاں پر ان کی اپنی بھی سیکیورٹی تھی, کیونکہ یہاں پر جب بھی وہ کھانا وغیرہ کھاتے ہیں یہ کچھ ہے تو باقاعدہ اس محلے سے اس گلی سے کوئی گزرتا ہے تو باقاعدہ اس کی جو ہے اہل تشیع کے جو اپنے گارڈز ہیں وہ باقاعدہ چیک کرتے ہیں. اب کس طرح اندر داخل ہوا ہے یہ تو ابتدائی تفتیش کے بعد ہی معلوم ہوگا. جس طرح اس کے بالکل اسی مقام پر جہاں پہ دھماکہ ہوا ہے اسے تقریباً چند گز کے فاصلے پر شاہی کٹ ہے, اور کچھ چند سال قبل اس شاہی کٹ کے قریب جو ہے دھماکہ ہوا تھا, اس میں بھی جو ہے امام بارگاہ کو نشانہ بنایا تھا, اس میں کئی افراد ہلاک اور زخمی ہوئے تھے. اس کے بعد یہاں پر سیکیورٹی انہوں نے جو ہے اہل تشیع نے اپنی سیکیورٹی خود یہاں پر شروع کر دی تھی, اور کوئی بھی شخص یہاں سے گزرتا تو باقاعدہ اس کی تلاشی لینے کے بعد اس کو چھوڑا جاتا. آیا یہ معلوم نہیں کہ وہ آیا یہ ہوٹل میں پہلے سے بیٹھا ہوا تھا یا جو ہے ان کے مسافر خانے سے نکلا تھا یا کسی کے ساتھ آیا ہوا تھا, یہ ابھی تک یہ صورتحال جو ہے واضح نہیں ہو سکی. جی جہانگیر شہزاد, اپنے ناظرین کو بھی ہم اپڈیٹ کریں گے کہ 8 افراد جاں بحق ہوئے ہیں, 42 زخمی ہوئے ہیں, اور دائیں جانب آپ ناظرین مناظر دیکھ سکتے ہیں دھماکے کی جگہ کے, جہاں افراتفری کا عالم اور ریسکیو ورکرز نے یہاں سے زخمیوں کو منتقل کیا, اور بائیں جانب اسپتال کے مناظر ہیں. جہانگیر شہزاد, آپ نے ہمیں جہاں دھماکہ سے اپڈیٹ کیا اور اسپتال سے فیضان حسین آپ نے اپڈیٹ کیا, دونوں کا بہت شکریہ. اور پشاور کے بعد آپ کو کراچی سے اہم خبر دیں گے. کراچی میں لانڈی اسٹیشن کے قریب ٹرین میں دھماکے سے متعدد بوگیاں الٹ گئی ہیں, اور اسی بارے میں مزید جان گے ایکسپریس نیوز کے نمائندے ندیم احمد سے. ندیم احمد, اپڈیٹ کیجیے گا یہ واقعہ کس طرح پیش آیا, اس وقت صورتحال کیا ہے؟ جی ندیم, ہمیں اپڈیٹ کیجیے گا اس وقت یہاں پر صورتحال کیا ہے. ہمارے نمائندے ندیم احمد سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے وہاں پر اس وقت صورتحال کیا ہے. کراچی میں جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا گکھر پھاٹک کے قریب ریلوے ٹریک پر یہ بم نصب کیا گیا تھا, اور اس بم کے پھٹنے کی وجہ سے ٹرین کی متعدد بوگیاں الٹ گئی ہیں. اطلاعات کے مطابق کئی مسافر اس حادثے کے نتیجے میں زخمی ہوئے ہیں. ناظرین, افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے کراچی میں گکھر پھاٹک کے قریب ٹرین میں دھماکہ, 4 بوگیاں الٹ گئی ہیں. مزید جانیں گے اپنے نمائندے ندیم احمد سے. ندیم احمد, اس واقعے کی کیا تفصیلات سامنے آئی ہیں اور اس وقت کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی, ریسکیو آپریشنز کے اندر خاصی دشواریوں کا سامنا ہے, چونکہ شہر سے باہر کچا علاقہ ہے اور یہ گگر پھاٹک کے قریب جو ہے یہ واقعہ پیش آیا. دہشت گردوں نے ایک ٹرین کو جو ہے وہ نشانہ بنایا اب کی دفعہ, اور یہ شالیمار نائٹ کوچ تھی جو کہ کراچی واپس آ رہی تھی. یہ اسی دوران ڈاؤن ٹریک کے اوپر یہ بلاسٹ ہوا ہے, جس کے نتیجے میں 4 بوگیاں جو ہے وہ الٹ گئی ہیں, اور اس میں سوار متعدد درجے مسافر جو ہے وہ شدید زخمی ہیں. تاہم ابتدائی اطلاعات کے مطابق بعض جو مسافر تھے ان کے جاں بحق ہونے کے بارے میں بھی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں, تاہم اب تک کوئی مصدقہ تصدیق نہیں ہو پائی اس حوالے سے. تاہم میں واضح کر دوں ہمارے ناظرین کے لیے کہ یہ واقعہ کراچی گگر پھاٹک کے قریب پیش آیا ہے, اور اس مقام کے اوپر حادثے میں جو ہے وہ متعدد مسافر زخمی ہوئے ہیں. ریسکیو ایمبولینسز جو ہے وہ یہاں پہنچ رہی ہیں, ایڈی, چیفا اور دیگر ریسکیو ایمبولینسز جس میں خدمت فاؤنڈیشن وغیرہ بھی شامل ہے. تمام ریسکیو ورکرز یہاں پہنچ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے تمام زخمیوں کو جلد از جلد اسپتال منتقل کیا جائے. اچھا ندیم, اس اطلاع کو کنفرم کر دیا گیا ہے کہ یہ دھماکہ جو ریلوے ٹریک پر ہوا یہ نصب شدہ بم کی وجہ سے ہوا؟ جی بالکل, ممکنہ طور پر ابتدائی معلومات اسی قسم کی حاصل ہوئی ہیں کہ یہ ریلوے ٹریک پہ نصب دھماکہ خیز مواد تھا, جس کے نتیجے میں یہ بلاسٹ ہوا ہے اور اس ٹرین کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا ہے, جس کے نتیجے میں متعدد مسافر زخمی ہو گئے. ندیم احمد ہمارے ساتھ لائن پر رہے گا. ٹرین میں سوار ایک مسافر عدنان ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے, ان سے بات کر لیتے ہیں. عدنان, بتائیے گا کہ یہ واقعہ جب پیش آیا آپ نے اس وقت کیا دیکھا اور اس وقت کیا منظر تھا؟ سر ہم تو اندر تھے, ہمیں تو ایسا لگا جیسے پتہ نہیں اندر کچھ ہو گیا اندر, لیکن جب ہم باہر نکلے تو باہر ہمیں ایسا اب نظر آ رہا جو میں جہاں کھڑا ہوں 10 منٹ 8 سے 10 منٹ کے فاصلے پہ بالکل پٹے اڑی ہوئی ہے, اور آگے کی 2 بوگیاں ہیں بالکل گری ایک سائڈ پہ گری ہیں, اور اس میں سے بندے نکال رہے ہیں. تو یہ بتائے گا اپنی مدد آپ کے تحت زخمیوں کو نکالا جا رہا ہے یا ریسکیو ورکرز پہنچے وہاں پر وقت پر؟ نہیں, ریسکیو والے تو پہنچ گئے ہیں, ریسکیو والے کافی دیر سے پہنچے ہیں اور بندے نکال رہے ہیں اندر سے. کافی بندے زخمی بندے کافی نکال چکے ہیں. عدنان, کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ یہاں پر کتنے مسافر ہوں گے جو ان بوگیوں کے اندر ہوں گے جو پھنسے ہوئے ہیں ابھی تک؟ میرے اندازے کے مطابق تقریباً 200-300 بندے تو بھی ہیں اندر, 2 بوگیاں بالکل اوورہیڈ ہوئی ہوئی ہیں. اور جو مسافر اندر سے عدنان جو مسافر اندر سے نکل رہے ہیں کیا وہ کافی زخمی ہیں؟ جی ہاں, زخمی ہیں, کافی زخمی ہیں. 2-4 بندوں کو میں نے دیکھا ہے اور بہت زیادہ زخمی ہوئے ہیں. عدنان, آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اس دھماکے کے بعد بوگی کو آگ تو نہیں لگی؟ نہیں, آگ نہیں لگی بوگی. یہ بتائیے گا کہ سائڈ پہ چلے گی, ٹرین چل رہی ہے,
बोगी बिल्कुल एक्साइट में, सारी बोगियां। अच्छा अदनान, आपने हमसे बात की, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ट्रेन के मुसाफिर अदनान हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि जब जोरदार धमाका हुआ बोगी उलट गई और काफ़ी अफराद इसमें जख्मी भी हुए हैं। मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे नदीम अहमद से। नदीम अहमद ये बताएगा कि चूंकि अगर बोगी उल्टी है तो इसे उठाने के लिए हैवी मशीनरी की जरूरत होगी, क्या उसे तलब किया गया ताकि ट्रैक को क्लियर किया जा सके? जी, इस बारे में तो रेलवे हुकाम ही बेहतर तौर पर बता सकते हैं कि आया जो क्रेन्स होती हैं, जो कि रेलवे की अपनी क्रेन्स होती हैं, वो जब यहाँ पहुंचेंगी तब ही जो है वो मुमकिन होगा कि इस ट्रैक को क्लियर कर सके। इब्तदाई तौर पर फिलहाल जो है वो जख्मियों को रेस्क्यू करने की कोशिशें की जा रही हैं। मुख्तलिफ रेस्क्यू इदारे, चीफा रेस्क्यू है, ईडी रेस्क्यू है, KKF है, तो मुख्तलिफ रेस्क्यू इदारे जो है वो अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं कि किसी तरीके से जख्मियों को जल्द अज जल्द यहाँ से अस्पतालों में मुंतकिल किया जा सके। तो उसके बाद दूसरा मरहला होगा कि ट्रैक क्लियर कराने के लिए यकीनन रेलवे हुकाम इस मकाम के ऊपर हैवी मशीनरी भी पहुंचाएंगे और उसके साथ ही मुमकिन होगा कि ट्रेनों की आमदरफ्त बहाल कराई जाए। जी नदीम अहमद, इस वक्त जो जरूरी बात है वो ये है कि लोगों को निकाला जाए, जानें बचाई जा सके। अभी जैसे कि अदनान जो मुसाफिर थे इस ट्रेन के, उन्होंने कहा कि अभी बहुत से लोग हैं जो कि ट्रेनों के अंदर मौजूद हैं, तो किस किस्म की दिक्कत नजर आ रही है अभी मुसाफिरों को अंदर से निकालने में? जी, खासी चूंकि अंधेरे के अंदर इस वक्त जो है वो दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। अंधेरा खासा हो चुका है, रात के तकरीबन 9:30 बजने वाले हैं। अब इस टाइम के ऊपर इस शहर में कच्चे इलाका जहाँ वैसे ही कोई रोशनी का बंदोबस्त नहीं है, ना ही कोई बिजली का इंतजाम है, तो इससे आपको खूब अंदाजा हो सकता है कि इस इलाके के अंदर रेस्क्यू सरगर्मियों में किस किस्म की दुश्वारियों का सामना करना पड़ा होगा। क्योंकि एम्बुलेंसेस को इस मकाम के ऊपर पहुंचने में और पहुंच कर फिर तमाम जख्मियों को निकाल कर इन गिरी हुई बोगियों में से जख्मियों को निकालना और निकालने के बाद अस्पताल मुंतकिल करना एक तवील मरहला है। यकीनन इसके अंदर जो है हम इन्हें शाबाशी देंगे कि ये अपनी जानों के ऊपर खेल कर भी इस तरह की सूरत हाल के अंदर। जी नदीम, आप हमें यहाँ से अपडेट करें, आप तमाम सूरत हाल पर नजर रखिएगा, हम आपसे मजीद भी अपडेट्स लेंगे। फिर वक्त आपका शुक्रिया। मुल्क में जारी दहशतगर्दी की हालिया लहर पर आपने रिपोर्ट जानी। यहाँ बात कर लें तालिबान हुकूमत मुज़ाकरात की। तालिबान के साथ मुज़ाकरात को शुरुआत में ही एक झटका लग गया, लेकिन फिर कमेटियों ने हिलजुल की तो हचकोले खाती मुज़ाकराती कश्ती इससे पहले के डूबती बीच दरिया में दोबारा संभल गई। आखिर आज इस्लामाबाद में क्या होता रहा, यह जानेंगे जमशेद खान से। तालिबान और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात के लिए बनाई जाने वाली कमेटियों ने आज बैठना था, लेकिन हुकूमती कमेटी का कोई भी रुकन नहीं आया। तो तालिबान की कमेटी के तीनों अरकान ने 2 घंटे इंतजार के बाद धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, जिसमें मौलाना समीउल हक ने सख्त लहजे में बताया कि हुकूमती कमेटी ने आने की बजाय जवाब दे दिया। यानी आप खुद ये सोचें कि हुकूमत की कमेटी जिसकी असल जिम्मेदारी उसकी है, उसकी संजीदगी का क्या आलम है और हुकूमत की संजीदगी का क्या आलम है। मैं इस बुढ़ापे में 3 घंटे सफर करके पहुंचता हूं, इसको एक इबादत समझता हूं, और वो ऐन वक्त पर कहते हैं कि इस वक्त हम हाजिर नहीं आ सकते। तालिबान कमेटी के सरबराह ने हुकूमती कमेटी के वक्त मुकर्रर करने के बावजूद न आने को अमरीका और दूसरी ताकतों का दबाव करार दिया। मेरा अंदाजा ये है कि दबाव फिर शुरू हो गया है। पहले बात खुलूस से भी शुरू कर लेता है वज़ीर आज़म, लेकिन वो बाद में हालात का सामना नहीं कर सकता। इस कमेटी को भी पसपा कर दिया गया है और ये अमरीकी दबाव में। मौलाना समीउल हक ने यह भी वाज़ेह कर दिया कि तालिबान की तरफ से कमेटी 3 रुकनी ही रहेगी और दूसरी कोई कमेटी भी नहीं जिसने मुज़ाकरात करने हैं। वो तो बार बार ऐलानात कर रहे हैं, आज भी किया है कि हमारा मुकम्मल मैंडेट है इस कमेटी को। और दूसरी बात है कि उसी के लिए तो हम जमा हो रहे थे, तो फिर तालिबान के साथ कहाँ सिस्टम शुरू किया, मैकेनिज्म बनाए, उनसे पूछे कि क्या मुतालबात हैं, तो फिर आप तक वो पहुंचा दें कि ये मुतालबात हैं, कौन से माकूल हैं कौन से नामाकूल हैं। इससे पहले तालिबान की तरफ से पेश किए गए 5 नामों में से इमरान खान और मुफ्ती किफायतुल्लाह तालिबान कमेटी छोड़ चुके हैं। मौलाना ने हुकूमती कमेटी की संजीदगी को भी तनकीद का निशाना बनाया। पहले दिन से उन्होंने लाताल्लुकी का इजहार किया। हमने कल कहा कि उनसे मुशावरत करें, उस बात चल पड़े। मेरे ख्याल में ये लोग नहीं समझ रहे थे कि इतना संजीदा लेंगे हमने मामला। उन्होंने कहा चलता रहेगा,
मौलाना समीउल हक ने वज़ीर आज़म के साथ इस मसले पर मुलाकातों का भी जिक्र करके कहा मुज़ाकरात को दूसरी बार खराब किया जा रहा है। साथ ही ये भी कहा कि हमारा दरवाज़ा फिर भी खुला है और हम अमन के लिए जद्दोजहद करते रहेंगे। तालिबान कमेटी की जैसे ही मीडिया कॉन्फ्रेंस खत्म हुई तो हुकूमती टीम के रुकन रहीमुल्लाह यूसुफजई ने मुलाकात के लिए इस तालिबान कमेटी से दोबारा राब्ता करके मिलने पर रजामंदी जाहिर कर दी, लेकिन अभी वक्त सामने नहीं आया। तालिबान कमेटी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद न सिर्फ उनके इख्तियारात पर शकूक दूर हो गए बल्कि पहली मुलाकात न करने पर अब हुकूमती कमेटी दिफाई पोजीशन में भी दिखाई दे रही है। जमशेद खान, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। यहाँ आपको बताएं कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान का जो भी रस्मी बयान या पॉलिसी होगी आइंदा मीडिया को तर्जुमान शाहिदुल्लाह शाहिद के नाम से ईमेल में मौसूल होगा। बाकी किसी बयान को तहरीक का मौक़िफ़ ना जाना जाए। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के मरकजी तर्जुमान शाहिदुल्लाह शाहिद ने मीडिया को ईमेल के जरिए एक पैगाम भेजा है जिसमें उन्होंने तहरीक तालिबान की जानिब से अमन मुज़ाकरात के लिए कायम 3 रुकनी कमेटी के मेंबरान मौलाना समीउल हक, मौलाना अब्दुल अजीज और प्रोफेसर इब्राहिम पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है और दुआ भी की है कि अल्लाह इस कार खैर में इन हजरात की मदद करे और कामयाबी दे। दूसरी जानिब इसी ईमेल पैगाम में तर्जुमान शाहिदुल्लाह शाहिद ने ये भी वाज़ेह किया है कि आइंदा पूरी कौम खास तौर पर पाकिस्तानी मीडिया सिर्फ उसी तहरीरी बयान को तहरीक तालिबान पाकिस्तान का रस्मी और पॉलिसी बयान समझे जो मीडिया को ईमेल के जरिए शाहिदुल्लाह शाहिद के नाम से मौसूल हो। इसके अलावा किसी भी और नाम से जारी करदा बयान को तहरीक तालिबान पाकिस्तान का रस्मी या पॉलिसी बयान हरगिज न समझा जाए। तालिबान से मुज़ाकरात के लिए कायम हुकूमती कमेटी ने पैगाम भिजवाया है कि मौलाना समीउल हक के लिए जब मुमकिन हो हमें आगाह कर दे, हम मिलने को तैयार हैं। जबकि अब तालिबान कमेटी का कहना है कि आज मुलाकात मुमकिन नहीं। तफसीलात आमिर इलियास से। आज सुबह हुकूमती कमेटी ने आपस में मिल बैठकर तालिबान कमेटी पर कुछ सवालात भी उठाए थे और इसी वजह से वो तालिबान कमेटी से मुलाकात के लिए भी नहीं आए। समीउल हक खासे नाराज दिखाई दिए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नाराजगी का खूब इजहार भी किया। जराये के मुताबिक इजलास के बाद कमेटी के सरबरा मौलाना समीउल हक वापस अकोड़ा खटक चले गए। बाद में हुकूमती कमेटी के रुकन रहीमुल्लाह यूसुफजई ने तालिबान कमेटी के कोऑर्डिनेटर यूसुफ शाह से राब्ता करके मौलाना समीउल हक के लिए पैगाम भिजवाया कि कमेटी के अबहाम दूर हो गए। अब हुकूमती कमेटी अमन मुज़ाकरात के लिए तैयार है और मौलाना समीउल हक के लिए जब मुमकिन हो हमें आगाह कर दे। हम भी ऐसे सड़क पर बैठे लोग तो नहीं है ना। मौलाना समीउल हक से बूढ़ा आदमी है, वो वहाँ 2 घंटे सफर करके पेशावर से तशरीफ लाए थे। प्रोफेसर इब्राहिम खान साहब पेशावर से आए थे और इन्होंने हमें खुलकर इनकार किया। हम तो ठीक टाइम पर पहुंचे थे और यहाँ आ गए थे। अब ऐसी बात तो नहीं कि वो जिस वक्त गए जहाँ गए जैसे गए और ना हम उनके मुलाजिम हैं। हम तो कार खैर के लिए निकले थे और इस अमन के खातिर निकले हैं। जराये बताते हैं कि तालिबान कमेटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हुकूमती कमेटी का भी इजलास हुआ जिसमें कमेटी के अरकान इरफान सिद्दीकी, मेजर आमिर, रुस्तम शाह और रहीमुल्लाह यूसुफजई ने पहले आपस की मुशावरत की। कमेटी मेंबरान ने कोऑर्डिनेटर इरफान सिद्दीकी को मशवरा दिया कि आज ही मुशावरत के बाद किसी लाहे अमल का ऐलान करें और फिर कमेटी के रुकन रहीमुल्लाह यूसुफजई ने मौलाना समीउल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब कुछ इस तरह से दिया। मुलाकात मुमकिन है, आप बताएं। आज भी हम तैयार थे और अगर अगले दिनों में जब भी वो चाहेंगे तो वो मुलाकात हो जाएगी। हमारी ख्वाहिश होगी कि जो तालिबान की 3 रुकनी कमेटी नामजद हुई है इसमें भी कोई तालिबान रहनुमा शामिल हो जाए। कमेटी ने वजारत दाखिला चौधरी निसार से मुलाकात करके इन्हें भी तमाम सूरत हाल से आगाह किया, जबकि फिर वजीर दाखिला ने सारी सूरत हाल वजीर आजम को भी बताई। अब एक बार फिर मुलाकात के लिए दोनों तरफ रजामंदी सामने आ गई है जिसके लिए वक्त और मुकाम के तय पाने का इंतजार पूरी कौम को है। आमिर इलियास राना, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। ये तो जिक्र हुआ हुकूमत तालिबान अमन मुज़ाकरात का। अब शहर कराची का रुख करते हैं और पहले आपको सिंध असेंबली के इजलास का बताते हैं जिसमें MKM की तहरीक इस्तेहकाक पर हुक्मरान जमात और मुत्तहिदा के अरकान में असेंबली के दौरान जबरदस्त नोक झोंक हो गई। अरकान ने एक दूसरे पर कड़ी तनकीद की। मजीद बता रहे हैं कराची से वकील राव। ये है सिंध की तारीख साज असेंबली जिसके अरकान ऐवान में एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार कर रहे हैं।
मामला था एक रुकन असम्बली के इस्तेहकाक का, लेकिन इस पर हुक्मरान जमात और हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान ने ऐवान सर पर उठा लिया। MQM के डिप्टी पार्लिमानी लीडर ख्वाजा इजहारुल हसन ने SP फिरोजाबाद के खिलाफ ऐवान में तहरीक इस्तेहकाक पेश की तो हुक्मरान जमात इसके आड़े आ गई। ख्वाजा इजहारुल हसन का कहना था कि पुलिस अफसर ने 12 रबीउल अव्वल के रोज इन्हें और इनके दीगर पार्लियामेंटेरियन साथियों को MA जिना रोड पर वाक़े कैंप में न सिर्फ जाने से रोका बल्कि इनकी तजलील भी की। लिहाजा ऐसे अफसर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मगर PPP के दीगर अरकान और वज़रा की तरह कायद ऐवान कायम अली शाह ने पुलिस अफसर का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ किया। गाड़ियों में भी थे और जो रिपोर्ट हमें दी गई है इसमें कि उनके साथ हथियार भी थे। अब ये कहाँ तक सही है या नहीं है कि उनके पास हथियार थे। MQM की हिमायत में फंक्शन लीग के इम्तियाज शेख ने कहा कि इस मामले को कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाए, मगर हिज़्ब इक़्तिदार ने एक न सुनी और तहरीक इस्तेहकाक को अगले इजलास तक मौखर कर दिया। हम उस एक अफसर की हिदायत के ऊपर वहाँ खड़े रहे, हमने वो बैरिकेड्स या उसकी वो जो पाबंदी थी वो हमने ब्रेक नहीं की। स्पीकर आगा सिराज दुरानी ने इजलास जुमा के रोज तक मुलतवी कर दिया। वकील राव, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। सिंध असम्बली में नोक झोंक हुई है। आपने जाना सिंध फेस्टिवल का जिक्र करें कराची में, यूं तो इस फेस्टिवल में बहुत कुछ है, मगर आज इस सिलसिले में होने वाली गधा गाड़ी रेस ने शायकीन के दिल जीत लिए। महमूद रियाज। किसी गधे की हुई मालिश तो किसी की खिला पिला के हुई सेवा। जी, गधों के ये नाज उठाए जा रहे हैं गधा गाड़ी रेस के लिए, जिसका एहतमाम किया गया सिंध फेस्टिवल कराची में। गधा गाड़ी रेस में 50 खिलाड़ियों ने शिरकत की। गुलाम हुसैन यूं तो एक हाथ से माजूर है, लेकिन गधा गाड़ी दौड़ाना खूब जानता है। इसकी गधा गाड़ी सबकी तवज्जो का मरकज रही। पाँव से भी रेन को पकड़ता हूँ, हाथ को से भी पकड़ता हूँ, वो हिम्मत आ जाती है ना भाई। कराची के इलाके लियारी से ताल्लुक रखने वाले कई अफराद गधा गाड़ी रेस के इस खेल में अपना सानी नहीं रखते। सिंध फेस्टिवल में इस रेस को शामिल करने पर सब खुश थे। मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है और दूसरे भी राउंड होंगे, इंशाल्लाह कोशिश करूंगा जीतने की। खर्चा वगैरह मिल जाता है, इनाम मिल जाता है, हाँ अच्छा प्रोग्राम होता है। रेस के दौरान बलोची म्यूजिक ने भी समा बांध दिया। रेस में गधे खास आवाज सुनते ही हवा से बातें करने लगते हैं। सब मालकान की कोशिश थी कि इसकी गधा गाड़ी ही सबसे पहले फिनिशिंग लाइन पर पहुंचे। रेस जीतने वाले के लिए 50,000, दूसरे नंबर पर आने वाले के लिए 30,000 और तीसरे नंबर वाले सवार के लिए 20,000 की इनामी रकम रखी गई थी, जबकि तमाम हिस्सा लेने वालों को भी 1-1 हजार रुपए दिए गए। गधा गाड़ी रेस सिंध फेस्टिवल का एक अहम हिस्सा है, जिसमें खिलाड़ियों की एक बड़ी तादाद ने जोशो खरोश के साथ हिस्सा लिया। महमूद रियाज, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। और यहाँ पर आपको पेशावर धमाके से मुत्तलिक अहम खबर दे। तहरीक तालिबान तर्जुमान का पेशावर धमाके से लाताल्लुकी का इजहार। तर्जुमान शाहिदुल्लाह शाहिद का कहना है कि वो नहीं जानते ये धमाका किसने किया है। इस्सा खानी में कुछ देर पहले धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 8 अफराद जाँ बहक हुए, 42 जख्मी हुए और इस पर तालिबान ने इजहार लाताल्लुकी कर दिया है। हमारे नुमाइंदे नसर मिनल्लाह मौजूद है हमारे साथ, उनसे मजीद जानेंगे। जी नसर मिनल्लाह, तहरीक तालिबान की जानिब से कह दिया गया ये धमाका उनकी तरफ से नहीं किया गया। ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान के मरकजी तर्जुमान शाहिदुल्लाह शाहिद ने नामालूम मकाम से फोन पर बताया कि पेशावर में जो हमला हुआ है ये हमने न किया है और न नाइल्मी का इजहार किया है उन्होंने। नसरुल्लाह ये बताएगा कि अगर धमाका जिसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं की है तालिबान ने, लेकिन तालिबान के तो बहुत से ग्रुप हैं जो कि खुद कार्रवाइयाँ करते रहते हैं, तो इस हवाले से क्या पूछा गया शाहिदुल्लाह शाहिद से? बिल्कुल मैंने उसे पूछा, लेकिन उन्होंने बिल्कुल मुकम्मल लाइल्मी का इजहार किया है और उन्होंने ये कहा कि ये हमने नहीं किया और हमें पता नहीं किसने किया है। ये बताएगा कि जो सीज फायर का मुतालबा किया गया था अभी तक वो उस पर कायम है और आइंदा भी किसी किस्म की ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करेंगे? बिल्कुल, उन्होंने ये अभी तक तो सीज फायर का तो मुतालबा नहीं किया है, लेकिन उन्होंने कहा था कि हमारे जो 3 रुकनी कमेटी जो है वो हमारा ख़त्मी फैसला है, जो जिसमें जमीयत उलमा इस्लाम समीउल हक और जमात इस्लामी प्रोफेसर इब्राहिम और लाल मस्जिद खतीब मौलाना अब्दुल अजीज, इस 3 रुकनी कमेटी पर हमारा मुकम्मल एतमाद है। जी
जी नसमिन आप हमारे साथ ही रहिए। नाज़रीन को बताते चलें कि इस वक्त तहरीक तालिबान की जानिब से ये कह दिया गया है कि वो नहीं जानते ये धमाका किसने किया है। इस धमाके के हवाले से उन्होंने अपना इज़हार ला ताल्लुक किया है। आपको ये बताएं कि पेशावर में ये धमाका हुआ किस्सा खानी बाजार के उकब में, ये कूच रसालदार है जहाँ इमाम बारगाह के करीब होटल जहाँ लोग खाने में मशगूल थे, उस वक्त ये धमाका हुआ। खुद कुछ धमाका बताया जाता है। इसके नतीजे में 8 अफराद जाँ बहक हुए थे, लेकिन तहरीक तालिबान ने इस धमाके से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया है और बताया है कि वो नहीं जानते कि धमाका किसने किया, ये कार्रवाई किसने की है। और बताते चलिए आपको नाज़रीन के तर्जुमान तहरीक तालिबान शाहिदुल्लाह शाहिद ने यह तस्दीक की है कि इस धमाके से उनका कोई ताल्लुक नहीं। और इस वक्त आपको कराची में लांडी स्टेशन के करीब होने वाले धमाके के मनाजिर हम दिखाएंगे। इस टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये मनाजिर हैं उस जगह के जहां पर यह धमाका हुआ। कराची लांडी स्टेशन के करीब जब शालीमार नाइट कोच गुजर रही थी, डाउन ट्रैक के करीब ये धमाका हुआ। इस धमाके के नतीजे में मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए। नदीम अहमद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद जानते हैं। नदीम अहमद, इस वक्त हम मनाजिर में देख रहे हैं कि लोग जो है यहाँ पर मौजूद है। ट्रेन की बोगियाँ जो है जो उल्टी थी उसमें से क्या मुसाफिरों को निकाल लिया गया? जी, उसमें से अब तकरीबन जो है वो जख्मियों को निकाला जा चुका है, मगर अब भी यहाँ इंतहाई जो है वो रिकत आमेज मनाजिर है, चीखो पुकार का आलम है। जंगल है और जंगल के अंदर ये हादसा पेश आया है जब इस दहशत गर्दों ने रेलवे ट्रैक के ऊपर जो है वो बम नष्ट किया था, जिसके नतीजे में शालीमार नाइट कोच जो कि कराची वापस लौट रही थी डाउन ट्रैक के ऊपर थी और इसे जो है वो निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में 4 बोगियां जो है वो मुकम्मल तौर के ऊपर उलट चुकी हैं और इसके अंदर जख्मी काफी बड़ी तादाद थी जिन्हें निकाला गया है, रेस्क्यू किया गया है। हम अब तक किसी हलाकत की तस्दीक नहीं हो पाई है। था मैं वादे करूं नदीम अहमद, जिस तरह ये तकरीबकारी का वाकया पेश आया है, बहरहाल जो यहाँ मुसाफिर बाहर मौजूद हैं उनको अभी भी खतरा तो हो सकता है, तो इसके पेश नजर क्या पुलिस ने कोई इंतजाम किया कि इनको यहाँ से मुंतकिल किया जाए? जी हाँ, बिल्कुल। रेस्क्यू एम्बुलेंसेज जो है जिसमें ईडी की रेस्क्यू एम्बुलेंसेज हैं, शिफा की रेस्क्यू एम्बुलेंसेज हैं और दीगर सफाई इदारों के जो एम्बुलेंसेज हैं वो यहाँ पर बड़ी तादाद में पहुंचना शुरू हो गई हैं और मुसाफिरों को आपको क्या बताएं कि रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। एकदम से चिंगारी निकली है और क्या नाम 3 उल्टे हैं, ठीक है। हम लोग यानी लोग बच्चे गिरे सारे जाके वहाँ पे और कोई मदद नहीं आई। 1 घंटे तक यहाँ पे सिर्फ ये डर था कोई डाकू डकेता कि हम लोग को लूट ना ले। हमारी हुकूमत का बेहिसी का ये हाल है कि आवाम रोड पर खड़ी है, कोई हमारा रेस्क्यू का ट्रेन के मुसाफिर की गुफ्तगू भी आपने सुनी, काफी परेशान था वो और जिस तरह के उसने ये मनाजिर देखे उनको बयान कर रहा था। उसने बताया कि किस तरह से ट्रेन की बोगियां उल्टी, काफी घबराई हुई हालत थी उसकी क्योंकि ये मनाजिर काफी रिक्कत अंगेज है, रिक्कत आमेज ये मनाजिर हैं। हमारे नुमाइंदे नदीम अहमद हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। नदीम, यहाँ पर मुसाफिर जो है वो काफी घबराए भी हुए हैं और जैसे कि आप बता रहे थे कि उनको यहाँ से मुंतकिल किया जा रहा है, किस तरह से मुंतकिल किया जा रहा है और कब तक वो यहाँ से मुंतकिल कर दिए जाएंगे? जी, मैं थोड़ा सा वादे करूं कि इन जो मुसाफिरों की मुंतकिली के लिए सरकारी तौर के ऊपर अब तक के कोई वाज़े बंदोबस्त नहीं हो पाया है। अलबत्ता जो प्राइवेट निजी इदारे हैं, रेस्क्यू इदारे हैं, उनकी एम्बुलेंसेस को में ही सवार होकर जो मुसाफिर हैं वो अपनी मंजिल मकसूद की रवाना होने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम जख्मियों को यहाँ से निकाला जा रहा है। अब भी जो है वो जख्मी इन बोगियों के अंदर मौजूद हैं जिन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है रेस्क्यू वर्कर्स और जो अपनी मदद आपके तहत जो है वो कोशिशें कर रहे हैं। तमाम पुलिस के जो मुताल्लिका एहलकार थे यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए ताकि जंगल में किसी किस्म की मजीद तखरीबकारी और दहशत गर्दी के खदशे को भी काउंटर किया जा सके। जी नदीम अहमद, ये जगह जहां ये वाकया पेश आया है ये शहर से किस कदर फासले पर वाक़ है? कराची की जहाँ से हुदूद शुरू होती है तो कराची से तकरीबन जो है वो ये गग्गर फाटक से जो है वो 8 से 10 किलोमीटर का फासला है जहाँ पर ये हादसा पेश आया है और कराची के हुदूद से बाहर हो जाता है। तकरीबन कराची से 8 से 10 किलोमीटर के फासले के ऊपर ये वाकया रोनुमा हुआ है। जी, ये बताएगा कि खुदा ना खास्ता किसी के जाँ बहक होने की कोई इत्तला तो नहीं है और जख्मियों की भी आप तादाद हमें तस्दीक कीजिए, कितने जख्मी हैं? जी, अब तक जो जख्मियों को एम्बुलेंसेस के जरिए अस्पतालों की जानिब रवाना किया गया है तो उनकी तादाद 20 से ज्यादा है। तकरीबन 25 से 30 के दरमियान जो जख्मी हैं उन्हें शदीद जख्मी हालत में मुख्तलिफ अस्पतालों की जानिब रवाना किया जा रहा है। मगर चूंकि अभी रेस्क्यू सरगर्मियां जारी हैं तो हतमी तादाद के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि कितने जख्मी होंगे। अब जो इन बोगियों से तमाम जख्मियों को निकाल लिया जाएगा और अस्पतालों की जानिब रवाना कर दिया जाएगा तब ही हतमी तौर के ऊपर कहा जा सकता है कि कितने अफराद जख्मी हुए हैं। तमाम अब तक खुशकिस्मती से इस वाक़े के अंदर किसी के जाँ बहक होने की तस्दीक नहीं हो पाई है। जी अच्छा नदीम, जो 3 बोगियां उलट गई हैं उनको उठाने के लिए क्या इंतजामात यहाँ पर आप देख रहे हैं?
जी, उनको उठाने के लिए तो फिलहाल किसी किस्म के इंतजाम हमें नजर नहीं आ रहे। अलबत्ता जो कोशिशें पहली तरजीह हैं कि इस ट्रेन में सवार जो तमाम मुसाफिर थे उन्हें किसी तरीके से बखैर आफियत कराची वापस मुंतकिल किया जाए, और इस हवाले से हम देख रहे हैं कि एम्बुलेंस सर्विसेज की जो है वो खिदमत जो है हमारे साथ लाइन पर रहेगा मकसूदुल नबी, DS रेलवे हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मकसूदुल नबी साहब, शुक्रिया एक्सप्रेस न्यूज को वक्त देने के लिए। ये जानना चाहेंगे आपसे कि इस हादसे के बाद अब यहाँ लोगों को रेस्क्यू करने के लिए और बोगियों को दोबारा से ऊपर लाने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? हमारी रेस्क्यू टीमें जो है वो पहुंच गई हैं साइट पे, और रिलीफ ट्रेनें जो हैं वो हमारी चल पड़ी हैं कराची से और फोर्टी से। तो वो जैसे ही पहुंचती हैं तो हम ये उनका रिलीफ ऑपरेशन स्टार्ट कर दें। अच्छा मकसूद नबी साहब, ट्रैक जो है वो भी इस धमाके की वजह से मुतासर हुआ है और इन ट्रेनों की आमदरफ यकीनन इस वजह से अब रुक गई है। ये कब तक सिलसिला बहाल हो जाएगा? ये रिलीफ ट्रेनें आती हैं तो उसके बाद हम कोशिश करेंगे ट्रेन जो है वो जल्दी साफ कर दें, तो ट्रेन की आमदरफ स्टार्ट हो। जी, रेलवे के पास मतलूबा मशीनरी क्रेन्स वगैरह मौजूद है, तस्दीक कीजिएगा। जी बिल्कुल है। और कितनी देर में ये ऑपरेशन मुकम्मल हो जाएगा, अंदाजन बता सकते हैं मकसूदुल नबी साहब? ये मैं साइट पे मुआयना करने के बाद बता सकता हूँ जी। मैं साइट पे बस पहुंच रहा हूँ, सामने साइट नजर आ रही है। और क्या इन तमाम मुसाफिरों को यहाँ से मुंतकिल करने की जिम्मेदारी रेलवे खुद लेगी? जी, हम यहाँ से बिल्कुल उनको मुंतकिल करेंगे। और मकसूद नबी साहब, क्योंकि ये जंगल है जहाँ पर इस वक्त ये लोग मौजूद हैं, इनकी सिक्योरिटी के हवाले से क्या इंतजाम किए गए हैं? हमारी पुलिस मौजूद है यहाँ पे। ये बताएगा कि अभी तक हुकूमत में से किसी ने राब्ता किया आपसे, कोई हिदायत दी गई है इस हादसे के बाद? किससे? जी, हुकूमती किसी शख्सियत ने आपसे राब्ता किया है, इस वाक़े के बारे में कोई हिदायत दी है? हम सबसे राब्ते में हैं यहाँ। मकसूदुल नबी साहब, इससे पहले भी इस तरह के वाकयात पेश आते रहे हैं, ट्रेन को निशाना बनाया जाता रहा है। आपसे सिक्योरिटी के बारे में जानना चाहूंगा कि उसके बाद कुछ सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए? मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ साइट पे। मैं जी, मकसूद नबी DS रेलवे हमारे साथ इस वक्त बात कर रहे थे और हमें बता रहे थे क्या इंतजाम किए जा रहे हैं लोगों को यहाँ से मुंतकिल करने के लिए और यहाँ की सूरत हाल को बेहतर करने के लिए, ताकि ये ट्रेनें जो है ये अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो सके और सिलसिला जो है वो जारी हो सके। नदीम अहमद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ पर मौजूद हैं, हमें अपडेट कर रहे हैं यहाँ पर क्या इस वक्त वो देख रहे हैं। नदीम अहमद, बताइएगा कि यहाँ पर जैसे कि अभी मकसूद नबी साहब से हमारी बात हुई DS रेलवे, उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो रिक्वायर्ड मशीनरी है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है और यहाँ पर पुलिस भी पहुँच चुकी है। आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर? जी, पुलिस के पहुंचने की हद तक के तो मैं भी तस्दीक करूंगा कि बिल्कुल पुलिस तो यहाँ नजर आ रही है कि पुलिस के एहलकार जो है वो टोलियों की शक्ल में यहाँ पर पहुंच रहे हैं और कोशिश करेंगे वो भी रेस्क्यू सरगर्मियों के अंदर हिस्सा ले सके। मगर मैं वाजे कर दूं कि अब तक के रेलवे का ना तो कोई मुतल्लिका अफसर यहाँ पर साइट के ऊपर नजर आया है और ना ही किसी किस्म की कोई मशीनरी यहाँ तक पहुंची है। दूर उफ्तादा जगह है, रास्ते खासे दुश्वार गुजार हैं। कराची से बाहर जंगल के अंदर ये एक मकाम के ऊपर जो है दहशत गर्दों की जानिब से तखरीबकारी की कोशिश की गई है और अब तक के जो रेस्क्यू सर्विसेज हैं उसके अंदर भी खासी दुश्वारी का सामना हो रहा है, क्योंकि रास्ते कोई मुनासिब रास्ते नहीं हैं, जिसकी वजह से एम्बुलेंसेज को यहाँ तक पहुँचने में और पहुँचने के बाद जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल करने में खासी दुश्वारियों का सामना है। जी अच्छा नदीम अहमद, यहाँ पर औरतें और बच्चे भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं, तो क्या पहली प्रायोरिटी इन्हें मुंतकिल करने की है? जी, क्योंकि अब तक के जो रेस्क्यू सर्विसेज हैं उसके हवाले से कोई हमें हुकूमती शख्सियत जो है वो इनकी निगरानी करती नजर नहीं आती, जो तरजीहात का तयन करे कि आया पहले खवातीन बच्चों को मुंतकिल किया जाए या जख्मियों को मुंतकिल किया जाए। तो कोई अब तक के जो है वो अफरा तफरी का आलम है। अब तक के कोई ऐसी इंतजामिया नहीं यहाँ पर पहुँच सकी है जो कि स्ट्रीमलाइन करके रेस्क्यू सर्विसेज को आगे जारी रख सके। जी नदीम अहमद, अगर आपकी यानी शायरीन से बात हुई हो इस धमाके के बारे में, उनके एहसासात क्या सामने आए, और ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि कितनी बोगियां, तस्दीक करिएगा, कितनी बोगियां मुतासर हुई हैं इस धमाके से? जी, धमाके के नतीजे में 6 बोगियां जो है वो डी ट्रैक हुई हैं, जिसमें से 3 बोगियां जो है वो उलट गई हैं, जबकि 3 बोगियां जो है वो ने सिर्फ वो चूंकि टेढ़ी होने की वजह से जो है वो डी ट्रैक हो चुकी हैं और उसमें भी बाज़ जो मुसाफिर थे वो जख्मी हुए हैं, क्योंकि वो बोगियां जब डी ट्रैक हुई हैं तो वो गिरे हैं और उन्हें भी चोटें लगी हैं। तो बाज़ ऐसे भी जख्मी हैं जो मामूली जख्मी हैं और बाज़ ऐसे अफराद हैं जो कि इन 3 बोगियों में सवार थे जो मुकम्मल तौर पर पलट गई हैं, तो उनमें से बाज़ जख्मियों की हालत तशवीशनाक भी थी। जी अच्छा नदीम अहमद, कार्रवाइयाँ, इमदादी कार्रवाइयाँ तो इस वक्त जारी हैं, आप बता सकते हैं कि कितने एक मुसाफिर होंगे जो अभी तक इन उल्टी हुई बोगियों के अंदर मौजूद हैं?
جی मुमकिन तौर के ऊपर कोशिश तो यही की गई है कि अब तक तमाम ही यहाँ से जो है वो जख्मियों को निकाल लिया गया है, मगर हातमी तयन जब ही हो सकेगा कि जब इंतजामिया इसे क्लियर करार देगी। हो सकता है कि इन दबी बोगियों के नीचे कोई शख्स ऐसा भी दबा हो जिसे मजीद निकालने के लिए कोशिश की जाए, मगर अब तक जो नजर आ रहा है हमें तो उससे ये जाहिर होता है कि मुमकिन तौर पर तकरीबन तमाम ही जख्मियों को यहाँ से निकाला जा चुका है। जी नदीम अहमद, बहरहाल इस बात का भी खदशा मौजूद है कि कोई मजीद मवाद भी हो सकता है, धमाका खेज मवाद, तो इसके पेश नज़र क्या पुलिस ने या बम डिस्पोजल स्क्वाड अगर यहाँ पहुंचा है तो उसने सर्च ऑपरेशन किया है? नहीं, अब तक के कोई सर्चिंग का अमल नहीं किया जा सका, क्योंकि पहली तरजीह यही है कि किस तरीके से खवातीन हैं, बच्चे हैं, जख्मी हैं खासी बड़ी तादाद में, इन्हें जो है वो अस्पताल मुंतकिल किया जाए। तो पहली तरजीह सबसे जो है वो जो पुलिस है यहाँ पर और जो रेस्क्यू सर्विसेज हैं उनकी पहली तरजीह यही है कि पहले जख्मियों और खवातीन बच्चों की मुंतकिली का अमल मुकम्मल किया जाए, उसके बाद ही किसी किस्म का सर्चिंग का अमल या जो ट्रैक को क्लियर कराने का अमल जो है वो शुरू किया जा सकेगा। जी नदीम अहमद, ये बताएगा कि यहाँ जो मुसाफिर मौजूद हैं उनको लेने के लिए, क्योंकि यहाँ मोबाइल फ़ोन सर्विस तो चल ही रही है, तो उन्होंने खुद भी राब्ते किए होंगे, उनको लेने के लिए खुद भी उनके अज़ीज़ व अक़ारिब आ गए होंगे यहाँ पे? जी, अभी चूंकि पहुँचना इतना आसान नहीं है, मैंने जिस तरह आपको बताया कि दूर उफ्तादा मकाम है कराची, गग्गर फाटक से तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो इस जगह के ऊपर पहुँचना इतना आसान नहीं है आम शहरियों के लिए। वो कि रेस्क्यू सर्विसेज के एहलकार यहाँ पहुँच रहे हैं, इंतजामिया पुलिस यहाँ पहुँच रही है, जो न्यूज़ टीम्स हैं मुख्तलिफ इदारों की वो यहाँ पहुँच रही हैं, मगर आम शहरियों के लिए पहुँचना यहाँ पर जो है वो इतना आसान नहीं होगा अपने प्यारों को और अपने अजीज़ों को रिसीव करने के लिए। तो अब यही कोशिश की जा रही है कि ख़वातीन बच्चे जो इधर हैं उन्हें तरजीही बुनियादों के ऊपर जो है वो एम्बुलेंसेज में सवार करके कराची की जानिब रवाना किया जाए। अच्छा नदीम अहमद, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लोग काफ़ी परेशान हैं, खौफ राज का शिकार हैं, तो क्या कोई ऐसा इंतजाम भी किया गया है कि इनको मालूमात भी दी जाए और इनको मुतमईन भी किया जाए कि इनको इनके मुकाम तक पहुँचा दिया जाएगा जल्द अज जल्द? जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा तो उसी तरीके से जो है वो यकीनन इन्हें एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास भी यकीनन इनके अंदर रखता होगा। ताहम आगे गुज़िश्ता 1 घंटे से ये जंगल में बिल्कुल बेयारो मददगार थे, तो यकीनन इनकी हालत जो है वो खौफज़दा भी होगी और ये जो है वो हमें तशवीश जो है इनके चेहरों के ऊपर वाज़े तौर पे नज़र आएगी। जितने ख़वातीन बच्चे हैं, बल्कि मैं ये भी कहूँ कि तो मुनासिब होगा कि मर्द हजरात भी जो है वो हमें खासे खौफज़दा नज़र आए, क्योंकि कराची और कराची से गिरदो नवा के इलाकों में जो अमन अमान की मजबूत हाल है, उसके बाद अगर कोई जंगल के अंदर जो है वो किसी हादसे का शिकार हो जाए और 1 घंटे के बाद जब रेस्क्यू सर्विसेज पहुंचेंगी तो यकीनन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आम शहरियों के क्या तासुरात होते हैं। अच्छा नदीम, हमने देखा कि अभी ट्रैक का मुआयना भी कर रहे थे ये एहलकार, तो क्या अब कह सकते हैं कि ये ट्रैक जो है मुकम्मल तौर पर अब क्लियर है, कोई और मजीद इस किस्म का मवाद यहाँ पर मौजूद नहीं होगा? जी, इब्तिदाई तौर पर जो मैनुअली चेक किया जा सकता है टॉर्चेस की मदद से, जो वो तो पुलिस अहमद आप लाइन पर रहेगा। आमिर फारूक हमारे नुमाइंदे इस वक्त कैंट स्टेशन पर मौजूद हैं, उनसे हम वहाँ की सूरत हाल जानते हैं। आमिर, ये बताएगा कि क्या रेलवे के जो अफसरान हैं या रेलवे की इंतजामिया जो है वो यहाँ से रवाना हो रही है ताकि मुसाफिरों को रेस्क्यू किया जाए और ट्रेन जो बोगियाँ हैं उन्हें भी ट्रैक पर वापस लाया जाए? देखिए, जो अब तक की इत्तलात है इस वक्त मौजूदा पोजीशन ये है कि हमें रेलवे के जराए बताते हैं कि यहाँ से जो इमदादी ट्रेन जानी थी उसको इंजन नहीं मिल सका, इस वजह से उताहाल कैंट स्टेशन से रवाना नहीं हो सकी है। इसके अलावा जो हादसे का शिकार ट्रेन के बाद 4 ट्रेनें अंदरून मुल्क रवाना होनी थी, वो भी उसके मुसाफिर भी बदस्तूर रेलवे स्टेशन पर परेशान खड़े हुए हैं। ना उनका कहना यह है कि ना यहाँ को बताने वाला है उस हादसे से मुतालिक और ना ही उनके टिकट और जो रवानगी मनसूख की गई है उससे मुतालिक को तफसीलात से आगाह किया जा रहा है। लोग यहाँ परेशान हैं, वो कह रहे हैं कि हमें दफ्तर भी यहाँ पे बंद मिल रहा है, कोई अफसर यहाँ पे मौजूद नहीं है जो इस बात की वजाहत कर सके आया कि वो घर चले जाएं या फिर वो इंतज़ार करें नई ट्रेन का, नए शेड्यूल का। जी कैंट स्टेशन से आमिर फारूक, आप हमें अपडेट, आपका बहुत शुक्रिया। नदीम अहमद, कराची लांडी स्टेशन के करीब होने वाले इस हादसे की जगह से आप अपडेट कर रहे थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। ट्रेन में होने वाले इस धमाके के बारे में आपको मजीद भी अपडेट करते रहेंगे। इस न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। लाइव स्ट्रीमिंग के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट live.express.pk।